अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवाम के मसाइल में आपका मेज़बान मलिक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आटा लाइन, चीनी लाइन और नादरा में खड़े होकर शनाख्ती कार्ड बनवाने के बाद अब तब्दीली सरकार ने एक और नई चीज़ मुतारफ़ करवाई है, वो है खाद लाइन। खाद का बहरान, बेहिस इंतज़ामिया और हुक्मरान, जलील हो रहा ये गरीब किसान। नाजरीन, खाद के हसूल के लिए सुबह से आए ये गरीब किसान लाइनों में खड़े हैं। आधा दिन गुजर चुका है लेकिन अभी तक इन्हें खाद दस्तयाब नहीं हुई है। नाजरीन, किसान हजरात जो हैं वो जलीलो खार हो रहे हैं, परेशान हैं कि अगर खाद ना मिली तो उनकी जो फसल जो है वो उस तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगी जिस तरह से ग्रोथ होनी चाहिए। इस वक्त किसान हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। वो सरापा एहतजाज भी है। सरापा एहतजाज होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही। आखिर वजह क्या है? इंतज़ामिया इतनी बेहिस हो चुकी है, हुकूमत इस पर नोटिस क्यों नहीं ले रही? और जो अवाम है, किसान है, वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि हुकूमत को और इंतज़ामिया को इस हवाले से क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से आए हैं जी आप? खाद लेना आए जी। कहाँ से? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਧੁੰਦ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੱਚੇ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਗ ਤੇ ਆਏ ਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਖਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ 9000 ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਲੈ ਤੇ ਪਾਈਏ, 9000 ਨੂੰ 150 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੌ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਖਰੀਦੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਲ ਚਲਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਏ ਫਸਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ, ਕੋਈ ਤੱਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈਓ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਜੀ 1700 ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2700 ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ हुकूमत ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਈਓ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਸਟੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ कार्ड दे दियो। कभी काई फिल्मबाजी, कभी काई जी। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਓ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 10 ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 9000 ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਲੈ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2000 ਨੂੰ ਹਲ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਾਣ? ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? 2700 ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਕਿ 2700। ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਅਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਵਣ। ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਿਓ, ਸਵੇਰੇ। ਸਾਡੂ ਤਾਂ 9000 ਰੁਪਏ ਡੀਏਪੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿੰਦਾ। 9000 ਡੀਏਪੀ ਲੱਗੇ, 150 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1800 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਚਲਾਏ? ਡੰਗਰ ਵੇਚਣ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਣ, ਕੀ ਵੇਚ? ਅਸੀਂ 2-2 ਕਿੱਲੇ 4-4 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਦੇ ਆਨੇ सवेरे आ जाइयो जी, सवेरे आ जाइयो। केड़े पास ਅਸੀਂ ਜਾਈ ਦੱਸੋ? सरकारी रेट पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। किसान हजरात यहाँ पर जलीलो खार हो रहे हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर सिर्फ 2 बोरी वो 1 बोरी दी जा रही है, लेकिन उसके लिए भी इनको यहाँ पर जलीलो खार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक माजी मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ पर आई खड़ी है खाद लेने के लिए, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिली। माजी से पूछते हैं कि वो इस वाले से क्या कहेंगे। माजी की आखोगे तुसी कित्थों आए हो? सोना हाइट पल्ले चो आया। सोना इन्हें कणकां फैरान होइयां पईयां, सुक्कियां पईयां, अनखा जियां बैठे
असा के करिए अगा धक्के मारिए पिछा धक्के मारिए मीह दे विच असा लोड़ लोड़ ते चिकड़ां दे विच सरकार अज चमने तांदन है ही कोई ना असा किदे जावी ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ जी हाँ सानू खाद मिले ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜੇ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ओ बल नीलाम हो जासी 9,000 नु बोरी एक पाइए 150 नु लीटर ओ पाइए से तेल साड़े से जिते से हुन वरान हो खले गरूबे घर हो खले ओ सोना हुन सानू किसे पासे गलो खुदा दी रहमत से या रसूल अल्लाह सुबह घर से निकलते हैं खाद लेने के लिए यहाँ पर सारा दिन लाइनों में खड़े होकर जलीलो खार होकर वापस चले जाते हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। हमारे साथ कुछ और किसान हजरात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कित्थों आए हो भाईजान से? ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹਿਰ ਮਰਾਦ ਤੋਂ। ਖਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। 2 ਨਾ ਏਸੀ ਦਾ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ, 70 ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ 70 80 ਬੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2700 ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1700 ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੋ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਆ। ਏਸੀ ਨਾ ਅਹਿਲ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਅਹਿਲ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹਾੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੋਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਤੋਂ ਖਾਦ ਘਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 2700 ਦੀ ਬਜਾਏ 3700 ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾਣ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ और रजिस्ट्रियाँ खोले। हाँ चलो ठीक है। नाजरीन, किसान हजरात यहाँ पर हसूल खाद के लिए जलीलो खार हो रहे हैं और असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा ज़राअत जो है उसकी दोनों की कारकर्दगी पर इस वक्त सवालिया निशान है। जो किसानों को सरकारी निरखों पर सस्ती जो खाद है वो फराहम नहीं कर पा रहे। हमारे साथ कुछ और किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। चाचा जी कित्थों आए हो तुसी? मैं हैड इस्लाम तो। ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ? अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह 5 बजे ਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਦ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 1 ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, DAP ਤੇ ਗਵਾਰਾ ਯੂਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਰਕਸ਼ਾ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਬਲੈਕ 2700 ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਬਲੈਕ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਫਿਰ 2700 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੁਫੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਲਾ ਲੈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਤੀ ਬਸ। ਸ਼ਾਮ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਿਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਐਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? कि आधे घरों मुफ्त से बैठा है, तनख्वाह नहीं ले रहा हुकूमत। असिस्टेंट कमिश्नर जो हमारे टैक्सों से तनख्वाह वसूल करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर को जो है नोटिस लेना चाहिए, हमें खाद मुहैया करनी चाहिए। हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं खाद लेने के लिए और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी कित्थों आए हो? जो है बाबा जी की आखोगे? खाद नहीं मिलती भी बेटा, सुबह दे आए खले तंग आ गए बस। हुकूमत भी तंग है, ना AC आंदा है ना दिन है, और तो पहुंची नहीं।
ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੈਣਾ ਖਲੋ ਤੇ ਆ नहीं ਕੇ ये दुकान वाले ने की आख्या भी ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ हाँ जी फिर चलाओगे एसी आएगा फिर चल ना एसी आवे ना चले बगैर एसी तो चलती पई है एसी ना आवे नहीं चलती अच्छा एसी उससे तो चलते क्योंकि उधर भी तो कोई जाते तो एसी उससे सही ये ना गया ना कोई पिया तो कहते आजम तो एसी नहीं आंदा सही असा यहाँ बिल्कुल पैंदा जे भी तां ही आ पैंदा भी 2700 2500 तुम्हारे सामने जाती अच्छा ब्लैक से लवो तो फिर मिल जाती है रज के दे रहे ने ठोक के दे रहे ने किला ठोक पाल्टी ब्लैक अच्छा ब्लैक से कितने दी दे रहे ने 2700 हाँ ते ब्लैक ठुकदी पई आ सामने सारा दी जाती पई वेख देख ले ब्लैक में जो खाद है वो 2700 रुपए का फी थैला दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ और किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कित्थों आए हो जी? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਤਲੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ अच्छा जी ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਆਤੇ ਇੱਥੇ ਆਤੇ ਸੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਆਈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੋਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਖਾਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਟ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ ਖਾਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਾਬ ਅਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਸੇ अच्छा ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਆਹ ਟਰਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ सही ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੰਗ ਆਏ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਸੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਖਾਦ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਗਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਸ ਨਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਾ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਸਨ ਜੇ ਫਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਬਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਾਵਲਪੁਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਸਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਜਾਸਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਸਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਸਣ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸੋਣਾ ਇਹ ਖਾਦ ਵੋਟੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ तेल तुसी महंगे कर दिते खादा सानू महंगी मिली है जिम्मेदार तो पल्ले तुसा की पाया है की सानू फायदा है इमरान खान साहब हमने आपको मुंतखब किया आपको वोट दिया आपको सपोर्ट किया लेकिन आपकी हुकूमत में तमाम अशियाए खुर्दनोश महंगी हो चुके हैं खाद नहीं मिल रही है और ये देखें नाजरीन यहाँ पर इनको कहा गया था किसानों को कि आप इस फलां दुकान पर चले जाएं जहाँ पर आपको खाद मिलेगी असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ पर आएंगे लेकिन सुबह से आकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इंतज़ार में लेकिन इनको खाद नहीं मिल रही है हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कदों से बैठे हो जी? बड़ी देर हो गई सन था सुबह 7 बजे दे रोटी भी नहीं खाधी ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ? इन्हें आखा दुकान वाले आखा भी खाद मिलती आ जाओ दुकान ते बंद है दुको नमाज पढ़ने वागे ਅਸੀਂ बैठे हैं इतने ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਿਆ ਹੋ? ये पता नहीं केड़ी पढ़न का ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੋ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ? ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ मर गया जिम्मेदार हमें खाद चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है हम उनसे भी और किसान हजरात भी मौजूद हैं हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचा जी कित्थों आए हो? बस्ती हाफसाबाद मौजा तल्लड़ तहसील कितने बजे कदों दे आए बैठे हो? सुबह 7 बजे दे आए बैठे हैं कोई खाद खूद नहीं मिल रही बहुत तंग हो रहे हैं नहीं इस दुकान दा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ? कल की रिपोर्ट सी पे दुकान ते चलनी है सुबह आए हैं सुबह उन्होंने आख्या भी ज़रायत ही आ जाएगा चलेगी फिर नमाज पढ़न चला गया उस तो बाद फिर आया फिर दुकान बंद करते चला गया। शनाख्ती कार्ड जमा कीते ने ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी कीते हुए ने। अच्छा हाँ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ एसी साहब ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਖਾਦ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? एसी साहब आउणगे ज़रायत ही आउणगे फिर चलावांगे उस तो बाद दुकान भी बंद करते चला गया। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? हाँ जी इंतजार च बैठे हैं ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? बैठे हैं जहाँ कोई इंतजार। हमारे साथ एक और किसान भी मौजूद हैं जो सुबह से आए हुए हैं लाइन में लगे हुए हैं
लेकिन यहाँ पर उनको खाद नहीं मिली। हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बाबा जी, की आखोगे खाद नहीं मिली ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी, सानू खाद नहीं सुबह दी मिली। सानू तकरीबन 2 महीने हो चले ने, असी परेशान हाँ। सानू जे कोई बोरी मिलती है वो 2600 2700 दुकानदार जिहड़ा साडे कोलों रेट मंगदा पिया है। सही। हाँ जी, यानी ਅੱਜ फ्लैट से मिलती है। हाँ जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ। हाँ जी, ਜਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕੀਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਰਫਤ ਗੰਦਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਸਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖਾਦ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਾਹਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਗਵਾਰਾ ਖਾਦ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਆਪਦੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਨਰਮ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹਲੀ ਕਿਹਦੀ ਆਖੋਗੇ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਲਕਾ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਤਨੇ ਬਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਜੇ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 50 55 60 ਮਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਲਾ ਔਸਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਣ ਔਸਤ ਆਵੇਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਉਸ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 25 ਮਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ 25 ਮਣ ਗੰਦਮ ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਗੰਦਮ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ 2600 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਜੀ? ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ बेचारा गरीब बंदा है, ये नहीं मैं करांगा। हाँ, 2600 के हिसाब से मैंने खाद खरीदी है, लेकिन ये नाम नहीं बताना चाहते दुकानदार का। एक और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। गंदम के लिए हुकूमत ने छापे मारे, गंदम बरामद करवाई, अब खाद की जरूरत है किसान को। अब इंतजामिया जो है वो कहाँ पर है? खाद क्यों नहीं किसान को दिलवाई जा रही जो सरकारी रेट है, ब्लैक में मिल रही है? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि भाई वज़ीर आज़म चोर है, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ना अवाम से वादे तो बहुत ज़्यादा किए और हर वज़ीर आज़म करता है, ठीक है ना। तो वज़ीर आज़म का कोई गुनाह होता है क्योंकि वो बेचारा आता तो है अवाम की किराए के साथ ही बनते हैं सब कुछ। बाकी मैं तो सबसे पहले एसी असिस्टेंट कमिश्नर तहसील हासलपुर और DCO डिस्ट्रिक्ट कमांडेटर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर को मैं इल्तिजा ही कर सकता हूँ कि जनाब मेहरबानी फरमाएँ, अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त और शान शौकत से नवाजा है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि देखें एसी तो आपको भी तो इज्जत और शान और शौकत के साथ उन्होंने लाइनों में खड़ा किया हुआ है। देखें वो तो जब जिम्मेदार के पास खाद के लिए जब आते हैं कहते हैं एसी साहब कहते हैं छापे मारो, गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अभी भी तो
हज़ारों गाड़ियाँ पकड़ते हैं गंदम की, घरों में छापे मारते हैं। 1 मिनट, आपको कितनी यहाँ से खाद मिली है? हमें तो खाद नहीं मिली। खाद का इशू ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब हो गए, डीसी साहब हो गए, ये सारे माफिया लोग हैं, ठीक है ना। मैं तो करप्टली कह रहा हूँ, ये सब माफिया हैं, मुझे किसी का कोई खतरा नहीं, जिम्मेदार भाई हैं। नहीं, अभी आप कह रहे थे ये ईमानदार हैं, अभी आप माफिया कहने लगे। ईमानदार है ना, आपके वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार हैं। आपके वज़ीर-ए-आज़म जो ना आपके हैं, मेरे नहीं है, वो ईमानदार है। हमारा नहीं, मेरे नहीं है, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं ना, इसलिए मेरे नहीं है। क्योंकि अगर वज़ीर-ए-आज़म हो ना, तो उससे कम से कम इस इतनी आवाम को, जिसने उसको वोट दे के मुंतखब किया, उसे इंतहाई बड़े अदब एहतराम से कहता है, उससे शर्म से डूब मरना चाहिए। वो चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान साहब हों। जो घर का सरबराह होता है उसने तमाम घर के अफराद की मुश्किलात को मद्देनज़र रखना होता है। अब अवाम जलील हो खार हो रही है, अवाम उसकी रियाया है वज़ीर आज़म की। अवाम की मुश्किलात का अजाला करने के लिए वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? उसको यही करना चाहिए ना, उसे अपने उसने डिस्ट्रिक्ट में उनको अपने ऑफिसर बैठाए हैं, बैरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, डीसी साहब बैठे हैं, जिला इंतज़ामिया है, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ये इंतज़ाम करके देना ना। जब डीसी साहब एसी साहब को कहे नहीं, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर उन्होंने तो वैसे भी हलफ उठाए हुए हैं। ये जो तरीक़े इंसाफ की हुकूमत है, उनके एसपी हो गए, डीआईजी हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, उन्होंने सब ने हलफ उठाए हुए हैं कि उन्होंने ये हलफ उठाए हुए हैं, जी हमने तो आपको कमज़ोर करना है, ठीक है, जलील करना है इमरान खान साहब को। वो खुद ही हो रहे हैं और इनके हाथों से हो रहे हैं, ठीक है ना। कुछ नून लीग के लोग हैं, कुछ पीपल पार्टी के हैं, कुछ काफ लीग। इसमें नून लीग पीपल्स, मेरी बात सुने आप, जो है ना, देखें, अवाम को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और उस पर कंट्रोल करना इदारे का जो सरबराह होता है, मुल्क का जो सरबराह होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। अब आप जो दूसरी हुकूमतों पर इसका इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर हुकूमत इदारे का सरबराह ही उस पर कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर आम अवाम ने कंट्रोल करना है। भाई देखें, जिम्मेदार चाहे किसी भी हुकूमत में आया ना, वो जलील ही हुआ है। जितना पिछली हुकूमत में भी पिछली हुकूमत में भी यही जलालत थी और नेक्स्ट इसी हुकूमत में भी यही जलील। और जिम्मेदार हर हुकूमत में डाउन है। नून लीग को तो सिर्फ चाहिए कि हमारे तरक्याती काम चलें, अंडर स्ट्रीट चलें, वो भी जिम्मेदार को कमज़ोर करते हैं। ये भाई हैं, ये उनसे भी बेहतर आए हैं, ठीक है ना। हमें अगर 2700 रुपये की ब्लैक मिल रही है, ठीक है, वो ब्लैक भी नहीं मिल रही, चले ब्लैक मिले ना तो वो जिम्मेदार उसको भी मुहैया कर ले, वो भी नहीं मिल रही, ब्लैक में भी नहीं मिल रही। तो एसी साहब के पास को जो भी एसी साहब के पास जाता है या तो उनके ऑफिस में जाते हैं ना, वो कहते हैं भाई हमारे इख्तियारात में नहीं, तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर को क्या घर चले जाए। अगर उसके इख्तियारात में नहीं है तो वो घर जाके अपना आराम करे। डीसी साहब के इख्तियारात में तो वो घर जाके आराम करे। जब किसी के पास इख्तियारात ही नहीं है तो अवाम का उसमें कोई गुनाह नहीं है ना। अवाम से वोट लेके एमएनए मुंतखब हो जाते हैं, चले जाते हैं, वादे करते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। चले 2700 रुपए की मिले, ओपन कर दे इसको, कम से कम मिले तो सही। देखें, वो मिलनी तो चाहिए ना, वो भी मिल नहीं रही भाईजान। सरकारी रेट सिर्फ आपको जलील करने के लिए दिया गया है। ये रेट हमें सिर्फ जलील करने के लिए दिया गया। उसके अलावा जिम्मेदार को जितना ये कुछ देंगे उतना कुछ ले लेंगे। इन्होंने तजारत बनाई हुई है बाहर के ममालिक में, ये बाहर दूसरे मुल्कों में ये हमारी खाद हमारी सप्लाई कर रहे हैं। हमारे 1700 रुपया 1800 रुपया हमारा रेट था, वो अब 21,000 की बाहर के मुल्कों को जा रही, तो उन्हें तो फ़ायदा हो रहा है। जितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो सारे खा रहे हैं। एसी, मेरी रिक्वेस्ट है एसी साहब को, अगर ये काम नहीं चला सकते असिस्टेंट कमिश्नर, तो घर को जाएं। और दूसरी बात, अगर डीसी साहब जिला इंतजामिया वो भी काम नहीं कर सकते, वो भी घर को चले जाएं। हमें इस तरह के ना तो एसी की ज़रूरत है, ना हमें डीसी की ज़रूरत है। अच्छा, इस पर जो हमने है ना, जो महकमा ज़राअत के जो ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तारक साहब, गालिबन उनका नाम तारक, जो भी है, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया। हमने उनसे भी रब्ता किया सुबह, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी फ़ोन पर रब्ता किया। इन दोनों हस्तियों ने हमारा फ़ोन उठाना ही गवारा नहीं किया कि हमने सिर्फ उनसे यही मौक़िफ़ लेना था कि आवाम को खाद नहीं मिल रही और आप आवाम के इस मुश्किल को दुरुस्त करने के लिए, आसान करने के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। लेकिन दोनों हस्तियों ने हमारा फ़ोन नहीं सुना। भाईजान देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास हम भी सुबह के गए हुए हैं, ठीक है ना। असिस्टेंट डायरेक्टर ने साफ कह दिया, उसने कहा मेरे हाथ खड़े हैं। जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जाता है वो कहता है मेरे हाथ खड़े हैं, कोई एसी साहब के पास जाता है वो कहता है मेरे हाथ खड़े हैं, ठीक है। जिसके पास मर्जी चले जाएं वो कहते हैं हमारे हाथ खड़े हैं। तो जब इनके हाथ खड़े हैं तो जब गंदम का टाइम आता है फिर ये क्यों छापे मारते हैं? इन्हें शर्म आनी चाहिए। फिर क्यों कहते हैं हमारे पास तो ये इख्तियार आता है या हमारे पास तो ये इख्तियार आता है? इन्हें शर्म करनी चाहिए इस चीज़ की। इख्तियारात सब गरीबों पे इस्तेमाल हो, बिल्कुल गरीबों पे होते हैं, अमीर लोगों पे नहीं होते। ये उनसे भी बात कर लें, वो भी बैठे हैं, ठीक है। नाज़रीन, कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर आई हुई हैं जो हसूल खाद के हसूल के लिए आई हुई हैं।
हम उनसे भी जानते हैं कि वो कहां से आई हैं और वो इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी कित्थों आए हो? असां तो शदादी शाहपुर क्या करन आए हो? खाद लमण आए। खाद मिली कोई नहीं? खाद कोई नहीं है उसी ऐसी उसी तो चलसी एसी आसी ते चलसी। हाँ दुकान ते बंद पई है जिथे दुकान ਤੁਹਾਨੂੰ खाद मिलनी है। पूरा खले ते असें खलो रही हैं। कदों दे आए हो तुसी? वाह चेरो के सवेर दे आए। सवेर दे आए हो। खाद कोई नहीं मिली? कोई नहीं मिली, कोई नहीं मिली। सही बैठे असें पूरा खले असें बाहर रही हैं। एसी दे दफ्तर गए सो तुसी? नहीं ज़राअत दे दफ्तर गए सो? नहीं। इस दुकान दा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ? असें बस सुनी सुनाई ते आए हैं। सुनी सुनाई ते आ और गए। अड्डे ते आए हैं, अड्डे वाला आखा बेउथे चलदी पई। हाँ इस वक्त हमारे साथ एक और भी खातून मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। जी बाजी कित्थों आए हो? ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਤਲੜ ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਈ ਮਲਾਰਾ ਲਾਇਕ ਲੈ ਨਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਜਿੱਲੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਵੇ ਉਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ किसले हाँ अग्गा जाते तू लै ते रिश्वत लैके अग्गा जाते बेच देंदे गरीब बंदे दी वाह कोई नहीं इत्थे आके बैठे हैं सवेर दे। तुसी शनाख्ती कार्ड दी फोटो कापी जमा कराई है? कराई है असि लई बैठे हैं ते ओ आमदन पै कह लैंदे एक्सीडेंट नहीं आया कह लैंदे कोई नहीं आया इस तरह लारा लाई जांदे सवेर दा। अच्छा हाँ जी खाद कोई नहीं मिलती? खाद नहीं मिलती पई असी बैठे हैं सवेर दी आके निक्के निक्के बच्चे छड़ के। सुबह से हम जलीलो खार हो रहे हैं, अपना घर बार छोड़ा है, अपने छोटे छोटे बच्चे घर में छोड़े हैं, यहाँ पे सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही। और इसके साथ नाजरीन इनको ये भी कहा गया है कि असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर आएंगे तो वही आपको खाद उनकी निगरानी में खाद चलवाई जाएगी। जो असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत हैं वो आएंगे तो उनकी निगरानी में खाद जो है वो यहाँ पर आपको मुहैया की जाएगी। उस तो बाद दुकान भी बंद करते चला गया ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਰਾਂਗੇ। बैठे हैं जा कोई इंतजार तो ये कर रहे हैं ना। इंतजार कर रहे हैं कि दुकानदार जो है जो दुकान बंद करके यहाँ से चला गया है, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ भी उसने किसानों से वसूल कर ली है लेकिन इस वक्त तकरीबन दिन के 2 बज रहे हैं, दुकान बंद करके चला गया है। और दुकानदार किसान हजरात ये भी कह रहे हैं कि दुकानदार ने हमें यही कहा था कि ज़राअत का अमला आएगा, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर यहाँ पर आएंगे, उनकी मौजूदगी में यहाँ पर खाद चलाई जाएगी। नाजरीन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कहते हैं कि ज़राअत जो है मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत तरक्की करेगी, किसान तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। खान साहब क्या ऐसे मुल्क तरक्की करेगा? ऐसे मुल्क तरक्की करेगा? गरीब किसान इस वक्त खाद के हसूल के लिए जलीलो खार हो रहे हैं, दर दर मारे फिर रहे हैं। अगर इनकी फसल ना हुई, ये फसल सिर्फ इन किसानों ने नहीं खानी, हमने भी खानी है, आपने भी खानी है। कहाँ जाएंगे? अगर मुल्क में कहत पड़ गया तो फिर कहाँ जाएंगे? गंदम ना हुई तो फिर क्या खाएंगे? खान साहब आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करना होगा। अगर मुल्क से आपके वज़रा कह रहे थे कि बैरूने मुल्क से भी खाद हमने दरामद कर ली है, अगर बैरूने मुल्क से भी खाद दरामद हो गई है तो वो खाद कहाँ है? क्या ये किसान इसी तरह से जलीलो खार होते रहेंगे हसूल खाद के लिए? हसूल खाद के लिए क्या गरीब किसान मुख्तलिफ दुकानों पर जो सुबह से खाद लेने के लिए आते हैं, इनको कहा जाता है कि आप फलां दुकान पर चले जाएं, आप फलां दुकान पर चले जाएं, लेकिन इनको खाद नहीं मिलती। महकमा ज़राअत में जाते हैं खाद लेने के लिए तो वहाँ नहीं मिलती। असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर आज जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप फलां दुकान पर जाकर खड़े हों। लाइनों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही। खान साहब क्या ऐसा तो नहीं है कि ये ब्यूरोक्रेसी आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है? खान साहब अगर आपकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है तो आपको और सिर्फ आपको
इस ब्यूरोक्रेसी को नुकेल डालना होगी और इन गरीब किसानों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए इनको खाद फराहम करना होगी। इनको खाद की यकीनी वो भी सरकारी रेटों पर यकीनी बनाना होगी। सरकारी रेट पर खाद नहीं मिल रही खान साहब गरीबों को, लेकिन अगर यही लोग ब्लैक में 1700 वाला थैला 2500 2700 में लेना चाहें तो ये उनको मिल जाता है। खान साहब, आपने एक और पॉलिसी मुतारफ करवाई थी कि फी एकड़ 3 मन की पैदावार हर किसान बढ़ाएगा। कैसे बढ़ेगी ये पैदावार? अगर खाद ना मिलेगी तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? बजाय पैदावार बढ़ने के वो कम हो जाएगी। अगर फसलें उगी ही ना, फसल ना हुई तो फिर मुल्क का क्या होगा? क्या खाएगा किसान? कहाँ जाएगा किसान? कैसे तरक्की करेगा पाकिस्तान? नाज़रीन, किसान हजरात आपको दुआएं भी दे रहे हैं। सुन लें इनकी दुआएं कि हमने खान साहब को, तब्दीली सरकार को वोट दिया, सपोर्ट किया और आज हम हर महकमे में लाइनों में खड़े हैं। हर चीज़ लेने के लिए पैसे हमारी जेब में हैं, लेकिन चीज़ नहीं मिल रही। खान साहब, आपको सोचना होगा। खान बुज़दार खान साहब, आपको भी सोचना होगा। और इस ब्यूरोक्रेसी जो मकामी सतह पर बैठी हुई है, बड़े बड़े आपने दावे किए थे कि मैं फ़लाँ माफिया को नुकेल डालूंगा, फ़लाँ माफिया को पकड़ूंगा, फ़लाँ माफिया को पकड़ूंगा। लेकिन खान साहब, हंसी आती है आपकी बातें सुनकर। दोबारा जब आपका वीडियो बयान सुनते हैं कि तमाम माफियाज, जितने भी माफियाज थे, चीनी माफिया, खाद माफिया, आटा माफिया, हर किस्म का माफिया, सीमेंट माफिया, तमाम माफियाज, उनके असासे जो थे वो डबल ट्रिपल ट्रिपल हो गए। लेकिन अफसोस, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर से अमीर तर हो गया और उनके असासे कई गुना बैंकों में पड़े पड़े, गोदामों में पड़े पड़े उनकी अशिया जो है 10 गुना बढ़ गई। गरीब किसान, गरीब इंसान, गरीब अवाम जलील व ख़ार हो रही है। खान साहब, इस पर आपको नोटिस लेना होगा और फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेना होगा ताकि इन गरीब किसानों को खाद मिले और ये आपके लिए, आपके मुल्क के लिए गंदम की फसल तैयार करके आपको बेहतरीन सूरत में आपको मुहैया कर सकें। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। नेक्स्ट किसी और इशू के साथ हाजिर होंगे।